Hello students, today we are going to solve some multiple choice question of the chapter 18 pollution of air and water, and this is the chapter taken from class 8 science. And as you know, we had discussed about this chapter, so we will solve some questions related to this chapter, and we will see what we have learned from the chapter. So the first question is, which type of pollution causes jaundice? So it is asking that कौन सा जो pollution है वो jaundice cause करने के लिए responsible है. So the option is water pollution, air pollution, soil pollution or thermal pollution. So as you know, the germs which cause jaundice, that germs live in water. They are found in the water, and if they are present in the water, so that contaminated water can cause the jaundice. So water pollution is the reason of the jaundice disease. So the correct answer is option 1, water pollution. Now I'll see the second question. The second question is asking you that a clean eco-friendly fuel is, okay, which of the following फ्यूल इज़ द इको फ्रेंडली एंड क्लीन. कौन सा इसमें से जो फ्यूल है वो क्लीन है, मतलब उससे कोई जो है वो रेजिड्यू नहीं बचता है, एंड प्लस वो इको फ्रेंडली है, मीन्स वो इन्वामेंट फ्रेंडली है, इट डजेंट कॉज pollution to the environment. Petrol, diesel, LPG, kerosene. So as you know, when we burn the petrol, lots of smoke and soot particles, carbon particles release into the environment. It causes air pollution. और आप ये भी जानते हो कि जब हम डीजल को भी बर्न करते हैं एज अ फ्यूल, तो उससे भी बहुत सारे स्मोक एंड बहुत सारी पॉइजनस गैसेस निकलती हैं जो एनवायरनमेंट को पल्यूट करती है, एयर पोल्यूशन कॉज करती हैं. ठीक है, कैरोसिन को भी जब आप बर्न करते हो तो स्मोक एंड पॉइजनस गैसेस ऑन एंड सूट पार्टिकल्स निकलते हैं, ठीक है, जो कि एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं होते हैं. बट व्हेन यू बर्न द एलपीजी, लेकिन जब आप एलपीजी को बर्न करते हो एज अ फ्यूल, तो आपको कोई ना तो कोई रेजिड्यू मिलता है और ना ही कोई पॉइजनस गैस इसमें से निकलती है. ठीक है, तो एलपीजी जो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, this fuel is very clean and eco-friendly. So the correct answer of the question 2 is option 3rd, that is LPG. This fuel is clean and eco-friendly. Now we will see the next question, and that is question 3rd. Question 3rd is asking you that air is a mixture of gases. One of the gas is 21% part of the air and is essential for the survival of human beings. This gas is, okay, as you know, the air is the mixture of gas. आपको पता है कि air जो है वो mixture of gas है, okay, and उसमें आप जानते हो कि gases का अलग अलग जो है वो amount है, वो percentage है. उसमें से एक gas है जो air में 21% क्वांटिटी में है, वो 21% है उसका उसकी क्वांटिटी एयर में, ओके, एंड वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है फॉर द सर्वाइवल ऑफ फॉर ह्यूमन बींग्स. ठीक है, तो वो गैस कौन सी है, विच गैस इज़ दिस, जिसका अमाउंट 21% है इनटू द एनवायरनमेंट. सो एज यू नो, द गैस ऑक्सीजन, which is very essential for the survival of the living organisms as well as the human beings, and it is found in the air in the percentage of 21. सो ये गैस कौन सी है, ऑक्सीजन. ठीक है, ऑक्सीजन गैस जो है वो 21% है इनटू द एटमॉस्फेयर, इनटू द एयर, and it is very essential for the survival of human being as well as for all the living beings. Okay, so the correct answer is oxygen. ओके, एंड नाइट्रोजन आप जानते हो, नाइट्रोजन मैक्सिमम परसेंटेज में होती है 78% इनटू द एनवायरनमेंट. सो द करेक्ट आंसर इज ऑक्सीजन. नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 is asking you that which of the following way is not the way to conserve water.
इसमें से कौन सा ऐसा तरीका है जो वाटर को कंजर्व करने के लिए यूज़ नहीं होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वे इज़ नॉट द वे टू कंजर्व वाटर, वाटर कंजर्वेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो रिप्लेस, रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल, ठीक है। तो आप जानते हो देयर इज़ अ रूल 3 Rs, ठीक है। 3 Rs में क्या क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम किसी भी नेचुरल रिसोर्स को हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। तो वाटर को भी हम इस रूल के थ्रू कंजर्व कर सकते हैं, वाटर के यूज़ को रिड्यूस करके, वाटर को रीयूज़ करके, उसको रिसाइकिल करके हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, बचा सकते हैं फॉर फर्दर यूज़ एंड फॉर फ्यूचर यूज़। रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस जो है इसका इस्तेमाल हम नहीं करते हैं। सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ replace is the correct answer for the question number 4. Now we will see the next question, and question number 5. Question number 5 is asking you the type of pollution which is likely to affect Taj Mahal in Agra to a greater extent is, ठीक है। ताजमहल जो है कौन सा ऐसा पोल्यूशन है जो ताजमहल को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंट में जो है वो ताजमहल को अफेक्ट करने वाला पोल्यूशन कौन सा है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन। सो एज यू नो द एयर पोल्यूशन इज़ mainly responsible to affect the Taj Mahal in Agra. So the correct answer is air pollution. Air pollution की वजह से acid rain हो रही है, okay, acid rain is occurring there, and due to the acid rain जो ताजमहल में जो मार्बल्स लगे हुए हैं दे आर गेटिंग डिसकलर्ड, वो डिसकलर्ड हो रहे हैं और कोरोड हो रहे हैं। दैट्स वाई द करेक्ट आंसर विल बी एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन जो है वो ताजमहल को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। सो एयर पोल्यूशन इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ आई विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। द फेनोमेनन ऑफ मार्बल कैंसर इज़ ड्यू टू, ठीक है, मार्बल कैंसर जो है वो क्यों हो रहा है, ठीक है, किस रीज़न से मार्बल कैंसर जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। मार्बल कैंसर का मतलब क्या है कि ये ताजमहल से ही रिलेटेड है। ताजमहल जो है वो मार्बल से बना हुआ है, मार्बल संगमरमर से बना हुआ है, मार्बल नाम के पत्थर से बना हुआ है। तो मार्बल जो है वो क्या हो रहा है, कोरोड हो रहा है, ठीक है, मार्बल जो है वो कोरोड हो रहा है, ख़राब हो रहा है, उसी को आप बोलते हो मार्बल कैंसर। और ये जो मार्बल, जो ताजमहल में मार्बल्स लगे हुए हैं जिससे ताजमहल बना हुआ है, ये कोरोड क्यों हो रहा है, ख़राब क्यों हो रहा है, वाई इज़ इट बीइंग डिसकलर्ड, तो ये मेनली ये एसिड रेन की वजह से हो रहा है, ठीक है। ताजमहल के चारों ओर जो फैक्ट्रीज़ वगैरह हैं वहाँ से जो है पॉइजनस गैसेस निकलती हैं लाइक SO2 एंड NOH, NO3, और ये गैसेस जो हैं वो एनवायरनमेंट में जाकर एसिड रेन कॉज करती हैं, ठीक है, एसिड रेन कॉज करती हैं, और वो एसिड इस मार्बल पे गिरता है तो मार्बल को कोरोड करता है, बर्न करता है, प्लस उसकी कलर को डिसकलर कर रहा है, ठीक है। तो जो मार्बल का कलर है पहले क्या होता था, वेरी ब्राइट वाइट होता था, ठीक है, बट ये अब क्या हो रहा है, येलोइश हो रहा है और उस पर धब्बे भी पड़ रहे हैं, ठीक है, येलोइश हो रहा है, धीरे धीरे डिसकलर हो रहा है। तो जो मार्बल कैंसर है वो किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू द एसिड रेन। सो द करेक्ट आंसर इज एसिड रेन। नाउ आई विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। पोटेबल वाटर इज़ द वाटर विच इज़, पोटेबल वाटर कैसा वाटर होता है या हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो पोटेबल वाटर वो क्या पोटेबल वाटर वो होता है जो हमें रिवर से मिलता है, ऑब्टेन फ्रॉम अ रिवर, या फिर जो वाटर हमें लेक से मिलता है हम उसको पोटेबल वाटर बोलते हैं, या ऐसा पानी जो प्योर हो, फिट हो हमारे ड्रिंकिंग के लिए, ठीक है, हमारे कंजप्शन के लिए, उसको हम पोटेबल वाटर बोलते हैं, या फिर ऐसा पानी जो हम सिर्फ अपने कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यू हैव टू चूज़ द करेक्ट वन कि पोटेबल वाटर क्या होता है। तो एज़ यू नो पोटेबल वाटर
उस वाटर को हम बोलते हैं जो क्या होता है प्योर एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग। ऐसा पानी जो क्या हो प्योर हो, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ ना हो और हमारे कंजप्शन के लिए, हमारे ड्रिंकिंग के लिए वो क्या हो फिट हो, ठीक है, तो उसको हम पोटेबल वाटर बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 इज पोटेबल वाटर इज़ प्योर, द वाटर विच इज़ प्योर एंड फिट फॉर ड्रिंकिंग, ठीक है। पोटेबल वाटर आप उसको कहोगे जो कि क्या प्योर हो और फिट फॉर ड्रिंकिंग हो। Now I'll see the next question. Question number 8. Question number 8 is asking you which of the following procedures will give you water free from all impurities. इसमें से कौन सा ऐसा प्रोसीजर है जो आपको पानी जो है आपके पानी को फ्री कर देगा सारी इम्प्योरिटी से, हर तरीके की इम्प्योरिटी से क्या कर देगा, वाटर को फ्री कर देगा एंड वाटर को क्लीन करेगा, ओके। इसमें से कौन सा प्रोसीजर है? एडिंग क्लोरीन टेबलेट्स, डिस्टिलेशन, बॉइलिंग, फिल्ट्रेशन। कौन से मेथड से आप वाटर को कंप्लीटली प्योर कर लोगे, ओके। सो द करेक्ट आंसर इज डिस्टिलेशन। Distillation is the process by which the water get free from all the impurities. इस प्रोसेस में क्या होता है कि वाटर को हीटअप किया जाता है, ओके, वाटर को हीटअप किया जाता है एंड जो वाटर है वो हीटअप होकर क्या होता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर इस वाटर वेपर को हम क्या कर देते हैं, कूल कर लेते हैं, ठीक है, कूल कर लेते हैं और वो वाटर वेपर कूल हो जाता है और वापस से फिर से वो लिक्विड वाटर में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है और ये जो आपको ये लिक्विड वाटर मिलेगा ये जो है वो आपको सारी इम्प्योरिटीज़ से फ्री मिलेगा, आपको प्योर वाटर यहाँ पे मिलेगा। क्योंकि जब आप इसको इवेपोरेट करोगे तो क्या होगा, ये जो इम्प्योरिटीज़ होगी वो यहीं रह जाएगी और वाटर जो है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर वो ऊपर चला जाएगा और सारी इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाएंगी, वो उस कंटेनर में ही रह जाएंगी और जब आप इसको कूल करोगे तो आपको प्योर वाटर यहाँ पर मिल जाएगा और जो भी इम्प्योरिटीज़ होंगी, जर्म्स होंगे, सारे क्या होंगे, कंटेनर में ही रह जाएंगे और वाटर आपका वेपर में कन्वर्ट होकर वापस से फिर से लिक्विड वाटर में कन्वर्ट होकर प्योर हो जाएगा। तो ये डिस्टिलेशन जो है, ये मेथड जो है आपके वाटर को प्योर कर देता है फ्रॉम ऑल द इम्प्योरिटीज। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 इज डिस्टिलेशन। Next we'll see the next question, question number 9. Question number 9 is asking you that trees help to reduce the pollution of environment. Lakhs of trees are planted by people in the month of July every year. This occasion is, ठीक है, आप जानते हो कि ट्रीज़ जो हैं हमारी मदद करते हैं पोल्यूशन को कम करने में, ठीक है, तो हम लैक्स ऑफ ट्रीज़, लाखों पेड़ लगाते हैं एक साथ, लोग जो हैं वो लाखों पेड़ एक साथ लगाते हैं। कब लगाते हैं? एवरी ईयर जुलाई के मंथ में, ठीक है, इन द मंथ ऑफ जुलाई। कौन से ओकेज़न पे ये ऐसा हम करते हैं, ठीक है, लैक्स ऑफ ट्रीज़ हम कौन से मंथ पे कौन से ओकेज़न पे ऐसा करते हैं? तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन डे के दिन ऐसा करते हैं या फिर प्लांटेशन मंथ में ऐसा करते हैं या फिर वन महोत्सव में या फिर वाइल्ड लाइफ वीक में। तो आपको पता है कि जुलाई के मंथ में हर साल हम क्या मनाते हैं, वन महोत्सव मनाते हैं और वन महोत्सव में हम क्या करते हैं, वन लगाते हैं। वन का मतलब जंगल कैसे लगेंगे, जब हम बहुत सारे पेड़ उगाएंगे, बहुत सारे पेड़ लगाएंगे, ठीक है। तो हम वन महोत्सव के दिन जो कि हम जुलाई में मनाते हैं हर साल, उस टाइम हम क्या करते हैं, बहुत सारे पेड़, हज़ारों लाखों पेड़ एक साथ लगाते हैं और वनों को तैयार करने में, ठीक है, जंगल्स बिल्डअप करने में हम हेल्प करते हैं, ओके। नो, सो द करेक्ट आंसर इज वन महोत्सव फॉर क्वेश्चन नंबर 9. Now I'll see the last question. Last question is asking you that which of the following is the source of natural pollution. आप जानते हो कि दो तरीके से पोल्यूशन को कैटेगराइज किया गया है, नेचुरल एंड मैन मेड, ठीक है। तो मैन मेड के बहुत सारे सोर्सेज हैं, यहाँ पे आपको बताना है इसमें से कौन सा नेचुरल पोल्यूशन का सोर्स है, ठीक है। पॉलीथीन बैग, ऑटोमोबाइल्स, फॉरेस्ट फायर, इंडस्ट्रीज़। तो आप जानते हैं कि पॉलीथीन बैग एक मैन मेड सोर्स है, ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियाँ, व्हीकल्स भी क्या हैं, मैन मेड सोर्स है, इंडस्ट्रीज़ भी क्या है, मैन मेड हैं। तो इसमें से ये जो फॉरेस्ट फायर है, ठीक है, ये क्या है, एक नेचुरल फिनोमेनन है, ये नेचर में अपने आप होता है। गर्मियों में जंगलों में आग लग जाती है और उसको आप फॉरेस्ट फायर बोलते हैं और उसमें से बहुत सारे, जब फॉरेस्ट में जंगल और जो भी चीज़ें जलती हैं, जंगल में पेड़ या जो भी चीज़ें जलती हैं, तो उसमें से बहुत सारा स्मोक, एशेज़
कार्बन पार्टिकल्स, अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स, सूट पार्टिकल्स, ये सारी चीज़ें निकलती हैं और पोल्यूशन कॉज करती हैं, ठीक है, एयर पोल्यूशन कॉज करती है. सो फॉरेस्ट फायर इज़ द नेचुरल रीज़न ऑफ द एयर पोल्यूशन. तो ये क्या है, सोर्स ऑफ नेचुरल पोल्यूशन है. सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 इज़ ऑप्शन थर्ड, फॉरेस्ट फायर. फॉरेस्ट फायर क्या है, सोर्स ऑफ नेचुरल पोल्यूशन, ठीक है. सो दिस इज the multiple choice questions of chapter number 18, and in the next video I'll solve some other questions of this chapter. Till then, thank you.